Hello students, today we will study our chapter number 2nd for class 7 for subject English. In the previous video we study our chapter, now we will solve the exercise. Let's get started. Our question number A is take the correct answers. First, the silence of the night was broken by the sound of a animal, bird, child, reptile. इसका करेक्ट आंसर होगा एनिमल. सेकेंड, दे वेर अ गैंग ऑफ पोचर इन द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी, आसाम, तमिलनाडु, केरला. आर करेक्ट आंसर इज आसाम. थर्ड, ही सॉट देम अ ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन अ heap of garbage, goat dropping, rhino dropping, cow dropping. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राइनो ड्रॉपिंग. फोर्थ, धनई, बबूल एंड जॉन्टी सैट ऑन द यंग हॉर्स, मेयर, कैमल, एलिफेंट. तो करेक्ट आंसर होगा एलिफेंट. फिफ्थ, द ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लूम थ्रू द शीट ऑफ क्लोथ्स, आइस, रैन, सिल्क. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रेल. Question number B. Fill in the blanks. First, they were familiar with the rhino's dash habit. यहाँ पर हमको fill करना है habit. Second, the leader of the gang dash moved into action. यहाँ पर हम fill करेंगे gang. Third, blood spouted from its snout like a dash. तो यहाँ पर हम fill करेंगे fountain. Fourth, one member of the gang must have stepped on the peat. तो यहाँ पर हम fill करेंगे peat. Fifth, the three print were dash identical. हमको fill करना है identical. Sixth, Makhoni climbed on to the main dash. यहाँ पर हम fill करेंगे road. Question number C. Write T for true and F for false statement. First, there were 6 poachers, strong and hefty men. True. Second, the poacher had watched the movement of the lion for a few months. Dash, क्योंकि वो rhino की movement देख रहे थे, ना कि lion की. Third, the rhino did not fight with all its strength. फॉल्स, बिकॉज राइनो ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उनको फाइट करने की कोशिश की थी. फोर्थ, द मोस्ट ऑब्जर्वेंट ऑफ द ट्रियो वॉज द फर्स्ट टू लाफ आउट. फॉल्स, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. फिफ्थ, मखोनी क्लाइम्ड ऑन टू द मेन रोड. ट्रू. क्वेश्चन नंबर डी. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, दे हियर्ड. यहाँ पर हमारा करेक्ट पेयर होगा द साउंड. सेकेंड, दे वेयर फैमिलियर. यहाँ पर हमारा करेक्ट पेयर है विद द राइनोस हैबिट. थर्ड, ही स्टक देम राउंड द. करेक्ट पेयर होगा पीट एंड लीड देम. फोर्थ, द राइनो पेयर है क्रिंग इन पेन. फिफ्थ, द अदर रश्ड joined him. करेक्ट पेयर होगा joined him. क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट. तो हमारा आंसर होगा द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ एन एनिमल स्ट्रगलिंग टू गेट आउट द ट्रैप. सेकेंड, Who captured a rhino and where? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द गैंग ऑफ पोचर had captured a rhino in the Kaziranga wildlife sanctuary in Assam. Third, which part of the rhino's body was valuable to the poachers? तो यहाँ पर हमारा आंसर है the horn of rhino was valuable to the poacher. Fourth, how had Dhanai and Makhoni become friends? तो इसका आंसर होगा धनई एंड मखोनी बिकम फ्रेंड्स बिकॉज धनई वॉज in charge of Makhoni.
He watched, feed and talked with her. He also taught her trick. Therefore, a bond of friendship had grown between the two. Fifth, how did the three boys spot the dead rhino? तो हमारा आंसर है, वन डे द थ्री बॉयज प्लान टू कट across the century and go right up to the bank of the Brahmaputra river. They rode on the back of Makhoni and went inside the Kaziranga sanctuary, but soon there was lightning and thunder. So they decided to turn back, but to a different and shorter route. Very soon they spotted vulture near a pit. They went up to the pit and find the carcass of rhino without horn. Question number F. Correct the spelling of the following words. यहाँ पर जो स्पेलिंग्स दी गई है वो गलत है, तो उन्हें हमें करेक्टिफाई करना है. तो हमारा फर्स्ट है फैमिलियर, तो इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, तो हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे FAMILIAR. सेकेंड, बैम्बू, तो यहाँ पर बैम्बू की स्पेलिंग गलत दी गई है, तो हम लिखेंगे BAMBOO. थर्ड, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट की स्पेलिंग ATTRACT. देन फाउंटेन, फाउंटेन की स्पेलिंग होगी FOUNTAIN. फिफ्थ, पोचर्स, तो यहाँ पर पोचर की स्पेलिंग होगी POACHERS. सिक्स, एक्साइटमेंट, तो यहाँ पर एक्साइटमेंट की स्पेलिंग होगी EXCITEMENT. सेवेंथ, आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल की स्पेलिंग होगी IDENTICAL. एट्थ, ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी की स्पेलिंग होगी AUTHORITIES. देन नाइन्थ, नर्वसली, NERVOUSLY. 10, पावरफुल, पावरफुल की स्पेलिंग होगी POWERFUL. क्वेश्चन नंबर जी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हमें वर्ड दिए गए हैं, इससे हमें सेंटेंसेस, हमारे ओन सेंटेंसेस बनाने हैं. तो फर्स्ट वन इज शेल्टर, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे वी ऑल नीड शेल्टर. सेकेंड, सेंचुरी, काजीरंगा इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम. थर्ड, डिस्टेंस, शी हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे. फोर्थ, फुटप्रिंट, द बॉय सॉ ऑफ ह्यूमन फुटप्रिंट. फिफ्थ, डिपार्टमेंट, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट इन द ऑफिस. अब हमारा क्वेश्चन नंबर एच है, यूजिंग अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू गिव अ सजेशन. मतलब कि यहाँ पर हमें इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. तो हम देखते हैं फर्स्ट वाला. फर्स्ट, इट वुड बी बेटर इफ़ वी पोस्टपोन द पिकनिक टू नेक्स्ट संडे. तो यहाँ पर हम बनाएंगे वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी पोस्टपोन द पिकनिक टू नेक्स्ट संडे. यहाँ पर हमें कुछ नहीं, सिर्फ वुडंट यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं. सेकेंड, इट वुड बी सेंसिबल टू रिटर्न बिफोर सनसेट. तो यहाँ पर हम बनाएंगे वुडंट इट बी सेंसिबल टू रिटर्न बिफोर सनसेट. थर्ड, इट वुड बी प्रॉपर टू वियर फॉर्मल क्लॉथ टू द पार्टी. तो यहाँ पर हम बनाएंगे थर्ड का, वुडंट बी प्रॉपर टू वियर फॉर्मल क्लॉथ टू द पार्टी. फोर्थ, इट वुड बी बेटर टू टेक अ शॉर्टर रूट. तो यहाँ पर हम बनाएंगे वुडंट इट बी बेटर टू टेक अ शॉर्टर रूट. फिफ्थ, इट वुड बी बेटर इफ़ वी वेट अ लिटिल लॉन्गर. तो इसका हम बनाएंगे वुडंट इट बी बेटर इफ़ वी वेट अ लिटिल लॉन्गर. देन सिक्स्थ,
a historical place would be more interesting for our summer trip. तो हम इसका बनाएंगे wouldn't a historical place be more interesting for our summer trip. क्वेश्चन नंबर I. Change the voice in the following sentences. तो इनका हमें सिर्फ वॉइस चेंज करना है. इफ़ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं तो हमें इसे वॉइस चेंज करके लिखना है. जैसे कि ये अभी नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है तो हम इसे वॉइस चेंज करके इंट्रोगेटिव वॉइस में लिखेंगे. फर्स्ट वन इज हु डिड द जॉब. तो हम इसका बनाएंगे बाय होम वॉज द जॉब डन. सेकेंड, कैन यू ब्रेक द डोर. तो हम इसका बनाएंगे कैन द डोर बी ब्रोकन बाय यू. थर्ड, विल शी सिंग अ सॉन्ग. तो यहाँ पर हम बनाएंगे विल अ सॉन्ग बी संग बाय हर. फोर्थ, इज शी स्पीकिंग इंग्लिश. तो यहाँ पर हम बनाएंगे इज इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम. फिफ्थ, आर यू ईटिंग अ बनाना. तो यहाँ पर हम बनाएंगे इज अ बनाना बीइंग ईटन बाय यू. क्वेश्चन नंबर जे. कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है ये एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, हमें इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो हमारा फर्स्ट है वेयर डिड यू फाइंड दिस पिक्चर. तो हम बनाएंगे वेयर वॉज दिस पिक्चर बी फाउंड बाय यू. पैसिव वॉइस में चेंज करना है मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में दिया गया है तो हमें इसे पास्ट टेंस में करना है. सेकेंड वन इज हाउ डिड यू ऑब्टेन दिस बुक. तो हम बनाएंगे हाउ वॉज दिस बुक बी ऑब्टेन्ड बाय यू. फिर बनाएंगे थर्ड, विच बुक डिड यू परचेज. तो हम थर्ड का बनाएंगे विच बुक वॉज परचेस्ड बाय यू. सिर्फ पास्ट टेंस में इसे कन्वर्ट करना है. फोर्थ, विच टॉय डज द चाइल्ड लाइक. तो यहाँ पर हम बनाएंगे विच टॉय इज लाइक्ड बाय द चाइल्ड. फिफ्थ, विच टीम won द मैच. तो यहाँ पर हम बनाएंगे द मैच वॉज won बाय विच टीम. सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज. इसको आपको आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है.